Assalamualaikum class 9 students. Today we are going to discuss Bohr model of atom of unit number 2. As you know, we have started how the atomic models were developed by the different scientists. First of all, we studied the Thomas plum pudding model. Then after that, we discussed in very detail Rutherford atomic model, and we have also studied the defects of the Rutherford atomic model. रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे उनके बेसिस पे साइंटिस्ट ने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे जो कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए थे. हाउ कैन एन एटम collapse और व्हाई आर एटम स्टेबल. रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गेट जो हैं वो रैंडमली दे आर ऑलवेज मूविंग, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन एवरी टाइम मूव कर रहा है तो उसके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, और अगर वाकई ही ऐसा है कि वो हर वक्त मूव कर रहा है तो one day will come that electron will fall into the nucleus and the structure of atom will collapse. And the second question which was raised by the scientists was, why does an atom give the line spectrum? एटम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द postulates of the Rutherford, but atom gives the line spectrum. What's the reason behind it? Then scientists considered there must be an other model of atom. It indicated that Rutherford's model was not perfect. Although the Rutherford model was a big discovery, gave us a big discovery about the nucleus, but it didn't satisfy the presence and location of the electrons in the atom. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नील बोहर जो है he was a co-worker of the Rutherford. Neil Bohr was a Danish physicist who joined the Rutherford in 1912 for his postdoctoral research. Basically, Neil Bohr is the student of the Rutherford. तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टीचर ने जो मॉडल रिप्रेजेंट किया था रदरफोर्ड ने, उसमें जो डिफेक्ट्स थे उन डिफेक्ट्स को जो दूर किया था रदरफोर्ड के अपने स्टूडेंट नील बोहर ने. In 1930, Bohr presented his atomic model based upon the quantum theory, and he won the 1922 Nobel Prize for Physics for his work on the structure of an atom. As we have just studied, what is the basis of the Bohr's model? बोहर ने अपना मॉडल 1930 में पेश किया और इसकी जो बेस थी दैट वाज क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक. Max Planck was another great scientist who has worked a lot in physics. Max Planck ने एक थ्योरी पेश की थी द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक, जिसको बेस बनाते हुए बोहर ने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया. What is the quantum theory of Max Planck's? Max Planck's की quantum theory क्या है? Basically, Max Planck, I told you, he was a physicist. He was working on a light bulb. What he wanted to do? He wanted to make the light bulb more brighter. वो बल्ब की जो है लाइट को इंक्रीज करना चाहता था, इसलिए उसने उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो करना शुरू किए. उस टाइम पे जैसे हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा, देयर वाज क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस. क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या था कि एनर्जी जो है वो एवरी टाइम एमिट हो रही है. कोई भी बॉडी है वो हर वक्त जो है वो मुसलसल एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा. लेकिन जो मैक्स प्लैंक की कैलकुलेशंस थी दैट वाज नॉट मैचिंग विद दैट थ्योरी. So he started to think on an other point that the light which is coming out from the bulb, that is not continuous, that is emitting in small packets. बल्ब में से जो लाइट निकल रही है वो एक स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में निकल रही है.
अगर तो ब्राइटर लाइट है तो उसके जो है वो पैकेट्स बड़े होंगे, और अगर जो है वो डिम लाइट है तो वो जो पैकेट्स निकले हैं वो छोटे पैकेट्स हैं. That packets, he called that packets in his own language quantum. Quantum means fixed energy. तो यहाँ पे बिल्कुल ही रेडिएशंस की एक डिफरेंट थ्योरी आ गई कि रेडिएशंस या लाइट जो है किसी भी बॉडी से जो रिलीज होती है वो कंटिन्यूस रिलीज नहीं होती, बल्कि वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज होती है. वो फिक्स्ड एनर्जी है. इट इज दिस क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी emitted or absorbed as electromagnetic radiations. Quanta is the plural of the quantum. In 1918, Nobel Prize in Physics was awarded to the German physicist Max Planck for his work on the quantum theory. अब बोहर ने इसी क्वांटम थ्योरी को यूटिलाइज करते हुए जो है वो एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया. According to the Bohr's model, revolving electron in an atom does not absorb or emit energy continuously. As Max Planck told us कि कोई भी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को अब्जॉर्ब या इमिट नहीं करता. तो सेम पोस्टुलेट वाज अडॉप्टेड बाय द बोहर. फिर उसने कहा कि जिस तरह मैक्स प्लांक्स ने हमें बताया है कि किसी भी बॉडी की जो एनर्जी है वो क्वांटम की फॉर्म में है, सिमिलरली द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, वो पैकेट की फॉर्म में है, as it revolves only in orbits of fixed energy called the energy levels by him. Now, this is one of the biggest point of the Bohr atomic model, that he introduced the concept of orbit. Orbit क्या है? Orbit वो पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है. रदरफोर्ड ने तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रैंडमली मूव कर रहे हैं, देयर इज नो फिक्स्ड पाथ. लेकिन बोहर कहता है ऐसा नहीं है. हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक पाथ है, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक रोड है जिसके ऊपर वो मूव करता है. कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के पाथ पे जो है वो मूव नहीं करता. यहाँ पे जो है वो बोहर का एटॉमिक मॉडल शो किया गया है. उसके अकॉर्डिंगली सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है, just as the Rutherford said that nucleus carry all the positive charge of an atom and it is present in the center. तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस के फैक्ट्स इतने हार्ड थे दैट इट कुड नॉट बी डिगेटेड बाय द एनी साइंटिस्ट. तो इस बात को तो सब साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया था रदरफोर्ड की कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है. लेकिन इलेक्ट्रॉन की मॉडिफिकेशन जो है वो बोहर ने की है. यहाँ पे बोहर ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे जो आपको सर्कल नजर आ रहे हैं बेसिकली दीज आर ऑर्बिट्स. These are orbits where electrons are present. जो न्यूक्लियस के करीब जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसको हमने कहना है n इज इक्वल टू 1. सेकेंड ऑर्बिट जो है दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 एंड थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3. ये जो n है दिस इज ऑर्बिट नंबर एंड particularly we can say it is principal quantum number. n is the principal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या चीज शो करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है कि ये कौन से नंबर वाला ऑर्बिट है. इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 1 then it means it is first orbit. If principal quantum number is 2 then it means it is second orbit. हमने जो है वो लास्ट चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी. उसमें जो है वो हमने देखा था, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के में जब हमने करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि KLM जो है वो इसमें कुछ शेल्स मौजूद होते हैं. जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है इसको हम अल्फ़ाबेटिकली भी प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज K. सेकेंड ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेटिकली L एंड थर्ड ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द M. अब बोहर जो है
उसने हमें सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बिल्कुल न्यूक्लियस के गेट इस तरह से मौजूद है जिस तरह सूरज के गेट डिफरेंट प्लैनेट्स मौजूद हैं। हर प्लैनेट का जिस तरह अपना पाथ है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स का भी हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक ख़ास पाथ है जिसको हमने ऑर्बिट कहना है। अब Bohr suggested that an electron moves around the nucleus only in certain allowed circular orbits. अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मौजूद है, जो कि उसका अपना ऑर्बिट है, उसका अपनी जगह पे मौजूद है, तो उस स्टेट को हम कहेंगे कि ये ग्राउंड स्टेट है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर वहीं पे मौजूद है जो कि उसकी अपनी पर्टिकुलर प्लेस है, तो वो स्टेट एटम की होगी ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाता है किसी दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्स को सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर जाता है, देन इट इज एन एक्साइटेड स्टेट। हर ऑर्बिट जो है उसकी अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है एंड दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। As long as electrons remains in the particular orbit, it does not radiate or absorb energy. अब जो भी इलेक्ट्रॉन अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है जो कि उसकी अपनी प्लेस है, अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रहता है तो वो जो है वो कभी भी एनर्जी जो है वो ना तो अब्जॉर्ब करेगा ना ही रेडिएट करेगा, क्योंकि वो अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, अब ये बात जो है इस पॉइंट ने एक्सप्लेन किया कि जो रदरफोर्ड का एक हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा था। रदरफोर्ड ने कहा था कि एवरी टाइम एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एटम तो कोलैप्स कर जाएगा। तो इस बात को बोहर ने सेटिस्फाई किया कि इलेक्ट्रॉन एवरी टाइम एनर्जी जो है वो अपनी रिलीज नहीं करता, बल्कि ये अपनी एनर्जी जो है वो इट इज emitted और absorbed only when an electron jumps from one orbit to another। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा तो या तो ये एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब करेगा या जो है ये एनर्जी रिलीज करेगा। दो केसेस हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब करे या रिलीज करे। तो अब्सॉर्ब कब करेगा? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट, इट अब्सॉर्ब्स एनर्जी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट मीन ऐसा ऑर्बिट जो कि न्यूक्लियस के करीब है, फर्स्ट ऑर्बिट से अगर वो हायर ऑर्बिट यानी कि सेकंड ऑर्बिट में जाता है, थर्ड ऑर्बिट में जाता है, फोर्थ ऑर्बिट में जाता है, यानी कि पहले ऑर्बिट से वो सेकंड या थर्ड ऑर्बिट में जाता है, तो जाहिर सी बात है उसे ऊपर जाना है। ठीक है, इस वक्त वो न्यूक्लियस के पास मौजूद है तो उसे ऊपर वाले ऑर्बिट्स में जाना है, तो उसको एनर्जी चाहिए, तो इट विल अब्सॉर्ब एनर्जी। And when it jumps from higher orbit to the lower orbit, it radiates energy means it releases energy। और अगर ये ऊपर वाले ऑर्बिट से वापस नीचे 1 या 2 या थर्ड ऑर्बिट में आना चाहता है तो ये क्या करेगा? ये एनर्जी को रिलीज करेगा। ये जो चेंज इन एनर्जी है डेल ई, इसको जो है वो उसने प्लांक्स की इक्वेशन को यूज करते हुए जो है वो शो किया है, दैट इज डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। E2 क्या है? एक ऑर्बिट की एनर्जी। E1 क्या है? दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी। H क्या है? H इज द प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स ने एक वैल्यू, जिस तरह हमने एक एवोगैड्रोस नंबर, एक एवोगैड्रोस कांस्टेंट पढ़ा था, उसकी एक वैल्यू थी, इसी तरीके से प्लांक्स ने भी एक कांस्टेंट जो है उसने अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन में दिया, उसकी जो वैल्यू उसने दी दैट इज 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड। और यहाँ पे जो आपको v लिखा हुआ है, बेसिकली दिस इज नॉट द v, इट इज न्यू, NEO न्यू। न्यू जो है वो यहाँ पे क्या है? वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। लाइट, अब लाइट कहाँ से? लाइट जो है वो जो एनर्जी जो एमिट कर रहा है, एनर्जी या अब्जॉर्ब हो रही है, वो किस फ्रीक्वेंसी की है, वो यहाँ पे जो है वो इसका फैक्टर आया है।
अब यहाँ पे सेम जो है वो रिलीज और अब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी जो है वो शो की गई है कि अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो या देखें नीचे लोअर ऑर्बिट से अगर ऊपर वाले ऑर्बिट में जाना चाहता है तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी। और अगर यहाँ पे अगर वो हायर ऑर्बिट ऊपर वाले ऑर्बिट से वो नीचे लोअर ऑर्बिट में आना चाहता है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। और ये एनर्जी कितनी अब्सॉर्ब होगी, यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज होगी, ये इसको हमने किससे शो करना है, डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू। जो इसका लास्ट पॉइंट है बोहर के पोस्टुलेट्स का, that is electron can revolve only in orbits of the fixed angular momentum, mvr, given as mvr is equal to nh over 2 pi. And I have already told you n is the principal quantum number or orbit number. इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में मौजूद है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, तो ये जो n है दैट इज द ऑर्बिट नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में मूव करता है और हर ऑर्बिट का अपना एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ होती है, एंगुलर मोमेंटम होता है कि अगर आप किसी भी बॉडी को, जैसे यहाँ पे एक लड़का है, वो एक स्टोन को उसने एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है, उसको जो है वो गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है। इस स्टोन को जो है वो सर्कुलर शेप में जो है वो घुमा रहा है, तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, जो इस स्टोन का मास और उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, इसका मास, और यहाँ पे ये जो है वो इसका रेडियस, ये जो है इसको हम कहते हैं कि ये इसका मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो मोमेंटम इन दी मूविंग बॉडी इन दी सर्कुलर शेप, ऐसा मोमेंटम जो कि ऐसे बॉडी का है जो कि सर्कुलर शेप में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स के अंदर एक सर्कुलर शेप में घूम रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो उनका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। एन मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और एच क्या है, एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट, और पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, जो कि मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं वही। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था बोहर के मॉडल के साथ, जिस तरह रदरफोर्ड के मॉडल के साथ भी प्रॉब्लम थे, तो यहाँ पे बोहर के मॉडल के साथ भी प्रॉब्लम था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इट वाज अप्लाइड टू द हाइड्रोजन आटम ओनली, सिर्फ ऐसी जगह पे अप्लाई होता था जिनके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिनके पास थे उनके ऊपर जो है वो बोहर का मॉडल अप्लाई नहीं होता था। तो ये सबसे बड़ा जो है वो फॉल्ट था जिसको जो है वो उसने कवर करने की, बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने कवर करने की कोशिश की थी, बट दैट इज आउट ऑफ योर स्कोप। Now we will look at the summary of the difference between the two theories. रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है। Firstly, it was based upon the Rutherford की थ्योरी based upon the classical theory, and it was Bohr की थ्योरी was based upon the quantum theory. Second point है electron revolves around the nucleus, but Bohr says electron revolves around the nucleus in orbits of fixed energy. Thirdly, no idea about the orbit was introduced. Bohr कहता है orbit had angular momentum. Atom should produce continuous spectrum. एटम को जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए, जबकि बोहर कहता है एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम शुड क्लैप्स, लेकिन बोहर कहता है एटम शुड एग्जिस्ट। दैट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।